Okay. Good morning, everyone. My name is Shivani, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. As usual, I'll start my day, our day, together with a beautiful quotation and some motivational thing. So, this quotation is said by Farah Gray. Now, what it says that if you don't build your own dreams, someone else will hire you to build theirs. So, let me tell you something very honestly and something very simple. So there will come a day in your life when your closest people will stop asking that, are you okay? And will start asking that, what are you doing with your life? And I'm sure that this thing has already started, right? Like, what have you achieved? What are your results? What are your goals, right? So that day is not cruel. That day is real. That day is reality. So focus on your goals today. So when you still have time, make sure that you're understanding what you have to do in your life and make sure that you're moving towards it, right? Don't get distracted here and there, right? Don't waste your energy explaining yourself. Use that energy to prepare, to learn, and to grow. So remember, discipline today protects your energy for tomorrow also, to prepare, to learn, and to grow. So with this thought, let's begin our today's current affair and make sure that you are motivated every single day, because more than preparation, that's what needed every single day, every single second. So with this thought, we'll move to our first current affair. Good morning, Ankita. Everyone is online today. Chalo. Judicial removal, tough law with a loophole. Now, very important, especially for prelims and also for mains writing. Make sure that you're writing all the keywords that I'm going to dictate. So now, what this news is telling to you, imagine जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स कौन है, वो प्रोटेक्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना. उनका काम क्या है? उनका काम है ये एक्सप्लेन करना कि लॉज क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग पीपल्स राइट, राइट. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस मेक इट वेरी हार्ड टू रिमूव अ जज, एंड दिस इज डन ऑन पर्पस, राइट. ताकि जो जजेस हैं, राइट, दे आर नॉट स्केयर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, एंड पॉलिटिशियंस कैन वर्क फ्रीली आल्सो, राइट. So to maintain that gap, to maintain that accountability, to maintain that result, this is done, है ना. But sometimes a serious problem comes up, that what if a judge is accused of misconduct? मतलब अगर वहां से कोई serious wrongdoing आ रही है, that how will we manage that, right? And here people often ask that how can such a judge be removed, right? So according to the constitution, a judge can be removed only for approved misbehavior या फिर उसकी कोई incapacity है सिर्फ तब, right? मतलब which means that there must be a clear proof that the judge did something serious wrongdoing या फिर that judge is no longer fit for the work. सिर्फ इन्हीं conditions पे that judge can be removed, right? Now, to remove a judge, parliament has to pass something in motion, right, with a big majority in both the houses. Sorry. So this tough process protects judicial independence also, right? But this is not the only case. There is a loophole in this. Even before this process starts, the removal motion must be accepted by the Speaker of the Lok Sabha or even Chairman of the Rajya Sabha, right? तो मतलब पहले भी छेड़छाड़ की जा सकती है. This process can take duration also, can longer duration also, right? So law does not clearly explain that when they should accept or reject the motion, right? इसी की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, and it can stop the process at a very early stage as well, right? Even if many MPs are basically signing this, even if they are like giving their approval, still it could be stopped या फिर उसको longer duration तक खींचा जा सकता है, ठीक है. So this basically loophole we have, right? So this can reduce what? Public trust reduce करेगा, right? Accountability पे, right? तो ये न्यूज हमें ये समझा रही है कि इंडिया का जज रिमूवल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है पेपर में, राइट, बट रियल लाइफ की बात करें तो बहुत ज्यादा वीक है, राइट. It protects independence very well, but it does not properly balance independence with accountability, है ना. So as we all know that judges must be free from political pressure, right, and they also be answerable if they commit serious misconduct also, right. Balance should be there. It's not they have like they're giving them like full responsibility and like all power, right, but when basically this misconduct is happening, so there is a loophole also, right. तो यही सवाल बेसिकली इस न्यूज में उठाया जा रहा है, और ये न्यूज किस चीज से, प्रीलिम्स से और मेंस से कनेक्ट करेंगे, that will you understand, and with that we'll also understand that why we are reading this news, ठीक है. सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकती है प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, we'll try to cover each and everything, ठीक है.
Okay, उससे पहले as usual I'll give you few keywords which you can write related to this news. I'm sure core समझ में आ गया होगा, basic समझ में आ गया होगा that what we are talking about. Deep में we'll discuss, but उससे पहले let's understand few keywords that you can write while writing this example also in the news. ठीक है, current affairs के साथ कैसे connect कर सकते हैं, we'll understand that. ठीक है, तो basically first keyword that we have is separation of power. ठीक है, separation of power इसके word से समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. Separation of power मतलब पावर शुड बी डिवाइडेड. ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड होनी चाहिए, राइट. दिस इज बेसिकली गिवन टू अस मोंटेस्क्यू. नाउ मोंटेस्क्यू व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट पावर मस्ट बी डिवाइडेड, लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी के बीच में. एंड इफ वन ऑर्गन बिकम टू पावरफुल तो फ्रीडम वहां पर निकलनी है, खत्म ही होगी वहां पर. फ्रीडम इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी लॉस्ट देयर, राइट. नाउ ये चीज उन्होंने बोली है. अब इस सिचुएशन में ये चीज कैसे फिट होती है? So as we know that judiciary must be independent from government, but if judiciary has power without checks, so it can be misused by authority also, right? So in this way you can write the example by writing this current affair also. ठीक है, अब good morning नेहा. इसके बाद में हमारे पास दूसरा कीवर्ड जो आता है वो दिया है लॉर्ड एक्टन में. I hope जो न्यूज का कोर है that basic is understood to you. So Lord Acton, what did he say? He says that power tends to corrupt. खुद का पूरा वर्ड ही समझ में आ रहा है that power tends to corrupt. Both the keywords are explaining to us that if we are giving, you know, power in larger portion, right, it could be like misuse, right. Now we know basically इनका एक famous quotation भी है which is widely used when it comes to UPSC examination. The quotation is power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, right. बहुत famous quotation है that you can write down. Now अब इस चीज में कैसे fit होती है? Judges enjoy huge power, right, and removal basically जो हमारा process है वो almost impossible है, right. और यहाँ पर misconduct देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है. नेहा बच्चे हिंदी बाइलिंगुअली तो बोल रही हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ट्राई कर रही हूँ बोलने का. आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज है. अच्छा, तो दूसरा कीवर्ड क्या बोलता है? दूसरा कीवर्ड है हमारे पास लॉर्ड एक्टन, पावर टेंड्स टू करप्ट. ठीक है, कि अगर देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी तो क्या होगा? देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज आल्सो, राइट. नो अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? रिस्क ऑफ मिसयूज, है ना. तो यही चीजें इस न्यूज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो देयर आर की टू कीवर्ड्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस न्यूज. ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे कि न्यूज किस चीज के बारे में है एंड व्हाई वी आर रीडिंग दिस. दूसरा, प्रीलिम्स में, मेंस में हाउ यू कैन राइट द आंसर, कीवर्ड्स आई हैव गिवन यू, राइट. फॉर्मेशन कैसी होगी, फॉर्मेट कैसा होगा, दैट आल्सो यू हैव अंडरस्टूड. अब यहाँ पे क्या इशू डिस्कस हो रहा है कि अभी क्या हुआ, 107 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे गिव नोटिस टू रिमूव अ हाई कोर्ट जज. ठीक है, कितने मेंबर्स थे? 107 MPs, राइट. नाउ दिस ब्रॉट अटेंशन टू हाउ जजेस आर रिमूव्ड इन इंडिया. ठीक है, यहाँ से हमें बेसिकली इसीलिए न्यूज में आ रहा है जब 107 मेंबर्स ने पार्लियामेंट में नोटिस दिया कि हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है, राइट. एंड दिस बेसिकली टेल्स अस दैट द सिस्टम इज फेयर या फिर इफेक्टिव है या नहीं. सो यहाँ पर इस न्यूज में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे if we are removing a judge, right, it is very difficult, and why this is difficulty is both good and problematic also, right. It is good कि basically there is a longer process, right, that basically judge have to go to get removed. But then again, what if judge is actually doing some misconduct, ठीक है, and is not fit to that position, तब remove करने में अगर problem आती है तो this is removing the trust between basically public and our system also, right. अब what does the constitution say about removing judges? In India, judges cannot removed easily, right. वो सिर्फ दो ग्राउंड पर ही रिमूव होंगे, या तो उनका मिसबिहेवियर आप प्रूव कर दीजिए या फिर उनके इनकैपेसिटी को प्रूव कर दीजिए कि वो या तो फिजिकली बेसिकली स्टेबल नहीं है, इनएबिलिटी है, या फिर वो मेंटली इनएबिलिटी है, राइट. सो दिस रूल बेसिकली एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट जजेस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, राइट. अब यहाँ पे दो आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला हमारे पास आर्टिकल 124 और दूसरा हमारे पास है आर्टिकल 217, राइट. सो दीज आर्टिकल वी हैव. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 124, what it talks about? It talks about removal of Supreme Court judges, right. When we talk about article 217, it talks about removal of High Court judges, right. Now the same strict procedure applies to both. ठीक है,
So the word impeachment is another very important thing, especially for prelims. Impeachment word is not used for judges in the constitution, right? Basically the constitution use basically removal, right? So impeachment जो होगा वो यूज होगा हमारे लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है? अच्छा ऐसा क्यों है, मुझे जल्दी बताओ, why we are using this word? और अगर इतना वर्ड का स्पेसिफाई होता है, what this tells about our system, जल्दी बताओ, why we are doing so? कि impeachment और removal, these two words we are specifying that ये इस चीज के लिए यूज होगा, ये इस चीज के लिए यूज होगा. why? ओके जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट बहुत पॉलिटिकल साउंड करता है, ठीक है? इसका मतलब है रिमूविंग अ पर्सन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रॉन्ग डूइंग या फिर क्योंकि उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस इम्पीचमेंट ओनली फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, पॉलिटिकल हेड है, जजेस थोड़ी ना पॉलिटिकल हेड है, राइट? सो दिस इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म फॉर देम ओनली, ठीक है? तो जजेस आर नॉट पॉलिटिकल हेड है, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल, राइट? उनका जॉब क्या है, उनका जॉब है इंटरप्रेट करना लॉज को, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चेक करना गवर्नमेंट को. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड जजेस टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिकल फाइट्स और उनके प्रेशर से, राइट? इसीलिए वर्ड्स को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है. दैट इज व्हाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जजेस आर नॉट इम्पीच्ड, जजेस आर रिमूव्ड, राइट? एंड रिमूवल बेसिकली जो है वो अलाउ करेगा ओनली फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर कोई इनकैपेसिटी है तो, राइट? सो द वर्ड रिमूवल इज न्यूट्रल, लीगल और कोई पॉलिटिकल नहीं है, राइट? अब ये चीज क्या दिखाता है हमें, ये चीज दिखाता है दैट जजेस आर नॉट ट्रीटेड लाइक पॉलिटिशियन, है ना? Basically there is a process, legal process is there, right? And all this is going towards the evidence basis, so their independence is protected. तो मतलब क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो पॉलिटिकल हेड है, तो इसीलिए वहां पे वर्ड इम्पीचमेंट यूज होगा. जज इज इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इसीलिए वर्ड वहां पे रिमूवल यूज होगा. एंड दिस चॉइस ऑफ वर्ड हमें ये दिखाता है कि कितना सीरियस है कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दोनों वर्ड्स में समझ में आ गया होगा कि क्यों क्यों होता है. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द रिमूवल प्रोसीजर. तो पार्लियामेंट ने स्पेशल लॉ पास किया, राइट? एंड जिसका नाम है जजेस एक्ट, दैट इज 1968, राइट? ये लॉ हमें एक्सप्लेन करता है दैट हाउ बेसिकली कंप्लेंट्स आर एग्जामिन्ड, हाउ बेसिकली इंक्वायरी कमिटीज आर फॉर्म्ड और कैसे पार्लियामेंट वोट करता है रिमूवल के लिए, राइट? देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली रिमूवल कैसे होता है, ठीक है? अच्छा अब सुनो, पहला है स्टेप मूविंग द मोशन. मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन आल्सो. तो मूविंग द मोशन में क्या होता है, सबसे पहले तो एटलीस्ट 100 एमपीज लोकसभा और एटलीस्ट 50 एमपीज फ्रॉम राज्यसभा, उन्हें बेसिकली नोटिस साइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होगा हमारा पहला स्टेप, ठीक है? फिर उसके बाद में हमारा दूसरा स्टेप होता है एडमिशन बाय स्पीकर. एडमिशन बाय स्पीकर. अब हमारे पास नोटिस साइन हो चुका है, ठीक है? लोकसभा से भी हो चुका है, राज्यसभा से भी हो चुका है. सो द स्पीकर, राइट, लोकसभा का स्पीकर और चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन, दे विल डिसाइड कि इस बेसिकली मोशन को एक्सेप्ट करें, राइट? ये जो यहाँ पे साइन हुआ इसको एक्सेप्ट करें या फिर इसको रिजेक्ट करें. अगर ये चीज रिजेक्ट हो जाती है तो देयर इज नो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, ठीक है? सो बेसिकली दैट मोशन एंडेड हियर ओनली, राइट? तो फिर उसके बाद में ये जो प्रोसेस है वो यहीं पे कंप्लीटली एंड हो जाएगा. फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर मोशन हमारे पास हो जाता है पास, ठीक है? सो देयर इज अ थर्ड स्टेप दैट इज इंक्वायरी कमिटी, ठीक है? सो इस इंक्वायरी कमेटी में क्या होता है, अगर हमारे पास बेसिकली यू नो इफ इट इज एडमिटेड तो क्या होगा, 3 मेंबर की कमेटी हमारे पास बनती है और ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस जो बेसिकली लगाए गए हैं जजेस पर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप आता है पार्लियामेंट्री वोट. अब हमारे पास बेसिकली मोशन भी साइन हो चुका है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन वाइज स्पीकर भी आल्सो देयर, ठीक है? हमारे पास बेसिकली इंक्वायरी कमेटी भी बन चुकी है. अब उसके बाद में हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री वोट, जिसमें ये बताते हैं, विकास कौन सा बचाओ बताओ बच्चे? ओके बच्चे, इम्पीचमेंट एक्ट, इम्पीचमेंट वर्ड हमारे इसमें इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है पॉलिटिकल हेड है, राइट? और अगर वो पॉलिटिकल हेड है, राइट, तो बेसिकली इसी चीज को मेंटेन करने के लिए वो वहां पे लगेगा इम्पीचमेंट वर्ड. बट जज क्या है, जज तो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है,
राइट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज मेंटेन करना है, राइट, इसीलिए वहां पे वर्ड लगाया रिमूवल, अंडरस्टूड। सो रिमूवल इज अलाउड ओनली फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या कोई इनकैपेसिटी होती है, राइट। तो यहाँ पे जो रिमूवल वर्ड है वो न्यूट्रल है, लीगल है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, अंडरस्टूड। इसीलिए यहाँ पे वर्ड लीगल लगाया जाता है फॉर बेसिकली जजेस, और पॉलिटिकल अथॉरिटीज के लिए इम्पीचमेंट वर्ड लगाया जाता है। इज इट अंडरस्टूड बच्चे? आई होप ऑल द 4 स्टेप्स इज अंडरस्टूड टू यू। तो चौथा हमारे पास क्या होगा, फोर्थ स्टेप इज दैट इफ द जज इज फाउंड गिल्टी, तो मतलब दोनों हाउस में, राइट, दे मस्ट पास द मोशन, राइट, विद द स्पेशल मेजोरिटी, राइट, ओनली देन कैन जज बी रिमूव। अब ये प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? इसलिए डिफिकल्ट है ताकि जो हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, प्रिवेंट किया जाए गवर्नमेंट को फ्रॉम रिमूविंग जजेस फॉर लाइक पॉलिटिकल रीजंस आल्सो। अगर ये चीज हमारे पास, ये गैप नहीं रहेगा, तो हर टाइम में पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा ही रहेगा, राइट, देन बेसिकली व्हाट वी कॉल जस्टिस वो कहीं ना कहीं ब्रीच होगा, राइट। सो टू इंश्योर दैट जजेस कैन fearlessly give judgment, this is necessary in democracy. There is a loophole also, there is a problematic issue also, but then again this step is very much necessary, ठीक है। अब ये big loophole, right, that we are talking about, why basically this is discussed in here, because I hope this is understood you. Up the speaker, chairman, they have like too much power at the first stage, right? Law gives no clear rules, ना उनके पास कोई फिक्स क्राइटेरिया है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, राइट। अगर कोई सीरियस एलिगेशन लगता भी है, राइट, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बिना रोका नहीं जा सकता। अब ये लूपहोल इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि एलिगेशंस कैन नेवर बी एग्जामिन्ड हियर, राइट। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है जुडिशरी में वो खत्म हो जाएगा, राइट। दीज एरेंट जजेस में एस्केप अकाउंटेबिलिटी आल्सो। और बेसिकली जो हम बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, उसका मतलब जीरो अकाउंटेबिलिटी तो नहीं हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बैलेंस की रिक्वायरमेंट बता दो, टू कीवर्ड्स दैट वी हैव अंडरस्टूड है, इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मेन आर्ग्यूमेंट ही, इस न्यूज में मेन आर्ग्यूमेंट इस चीज की गई है दैट जजेस मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, राइट, बट दे आल्सो मस्ट बी आंसरेबल फॉर मिसकंडक्ट, राइट। तो अभी का जो करंट हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो ओवर प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कुछ रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकता है, दैट यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन आल्सो, ठीक है। पहला तो ये हो सकता है कि क्लियर गाइडलाइंस दो स्पीकर और चेयरमैन को, ठीक है। डिस्क्रिशन कम होना चाहिए जब भी कोई एडमिशन स्टेज हो रही है। इंश्योर करना चाहिए कि क्रेडिबल कंप्लेंट जो है वो सारी की सारी एग्जामिन हो, राइट। और बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए जुडिशरी पे, राइट। इन्हीं के बेसिस पे बेसिकली वी कैन स्ट्रेंथन द जजेस। आई होप द न्यूज इज क्लियर टू यू। तो क्या समझ में आया हमें यहाँ पर समझ में आया हमें आर्टिकल 124 भी, ठीक है, कि कैसे हमारे यहाँ पे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड देन वी हैव नोटिस ऑफ 10 MPs जो कि दिया गया है, विच ऑन द बेसिस ऑफ विच बेसिकली देयर वाज आर्गुमेंट कि हाई कोर्ट के जज को रिमूव होना है, ठीक है। फिर उसके बाद मूविंग मोशन समझ में आया, स्पीकर और बेसिकली सेकंड पार्ट एडमिशन, थर्ड पार्ट इंक्वायरी कमेटी, एंड फोर्थ पार्ट इज व्हाट पार्लियामेंट वोट, राइट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स दैट वी हैव, ठीक है। ये किस किस के बीच में आर्गुमेंट है, जुडिशियल और अकाउंटेबिलिटी के बीच का डिलेमा है, राइट। देन व्हाई इट इज सच अ टफ प्रोसेस, और बेसिकली होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट प्रोटेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस आल्सो, प्रिवेंट करता पॉलिटिकल मोटिवेटेड रिमूवल्स आल्सो, एंड इंश्योर जजेस गिव फेयर जजमेंट्स टू देम, राइट। अब लूप होल्स क्या है कि कोई रियल क्लियर रूल्स दिए ही नहीं गए हैं, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इज देयर एनी पॉइंटर दैट यू वांट मी टू रिपीट? कोई भी चीज रिपीट करनी है वापस से? दूसरी न्यूज की तरफ चले, उससे पहले क्वेश्चंस कर ले। चलो, this is the question you have, and as usual you will get some time to write the answer. चलो, question is with reference to the removal of judges of the Supreme Court and High Court in India, consider the following statement. First is a judge can be removed only on the ground of proved mischievous behavior or incapacity. Second, a motion for removal must be passed by a special majority in both houses of parliament. Third, the constitution mandates that the presiding officer must admit every removal motion signed by the required number of members. Now, which of the statement given above are correct?
अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है, क्यों? पोर्टल पर भी आंसर नहीं है। इज द क्वेश्चन टफ? Okay, the answer we have correct is 1 and 2. क्यों है 1 and 2? Because a judge of the Supreme Court of High Court can be removed only on the ground of proved misbehavior and incapacity, right? अभी एक written भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी मैंने बताया, so 1 is correct, right? Now, second, the removal motion must be passed by special majority in both houses of the parliament, right? अभी मैंने बताया था कि कितने कितने members को basically, motion should be passed, right? तो दोनों ही houses आएंगे, so second option is also correct, ठीक है? उसके बाद में third नहीं है, third incorrect है. What third says? The constitution mandates the presiding officer must admit every removal motion signed by the required number of members. तो हमारे पास third में ही clarity हो चुकी है, second में clarity हो चुकी है, तो third का कोई सवाल ही नहीं होता, right? So this is wrong, this is wrong, this is wrong. So correct option we have is 1. इतना तो कुछ टफ था नहीं इसमें, इतना टाइम क्यों ले रहे हो ऐसे क्वेश्चंस लेने में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Now, false marriage promise is not criminal if relationship fails. Important, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल्स का मेंशन होगा, राइट? अब बात करते हैं. तो इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन वेयर मेनी स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड, men and women basically they become close, their relationship grows, right? And later the relationship breaks, right? So women basically feel cheated and they says that he promised to marry me, right? He had a physical relationship and then begged out. Now comes the big legal question कि क्या हर एक broken promise of marriage will it become a crime, है ना? और इज इट समटाइम्स जस्ट फेल द रिलेशनशिप? तो यही चीज कर्नाटका के हाई कोर्ट ने बेसिकली डिसाइड की है इस केस में. पहले समझेंगे कि ये केस वहां तक पहुंचा कैसे, फिर उसके बारे में समझेंगे यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है इससे, राइट? एंड द थर्ड थिंग दैट विल अंडरस्टैंड इज कि बेसिकली इसका मेंस में क्या क्या रेलेवेंस और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या क्या रेलेवेंस है, राइट? अब बात करते हैं कि लॉ क्या बोलता है. तो अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ दैट इज भारतीय न्याय संहिता, दैट इज बीएनएस, ठीक है? यहाँ पे एक नया ऑफेंस की बात होती है, दैट इज सेक्शन 69, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. व्हाट दिस सेक्शन 69 इज, इसके अंदर क्या क्या आता है, एंड रिगार्डिंग दिस व्हाट जज गेव कमेंट, राइट? अब 69 क्या बोलता है? बेसिकली इट मेक्स अ इट मेक्स इट अ क्राइम. अ मैन हैज सेक्सुअल रिलेशंस, राइट? एंड बाय डिसीट या फिर फ्रॉड के साथ में या फिर किसी फोर्स मैरिज के साथ में, राइट? विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ एक्चुअली मैरिज, राइट? सो द लॉ है पनिशेस चीटिंग और एक्सप्लॉइटेशन को बेसिकली पनिश करती है, राइट? नाउ यहाँ पर बात करते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्ट हियर, सो वी हैव जस्टिस एम नागर प्रसन्ना. ही मेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर. यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि जो लॉ है वो पनिश करेगा डिसीट को, फ्रॉड को, एक्सप्लॉइटेशन को. लॉ यहाँ पर पनिश नहीं करेगा कोई डिसअपॉइंटमेंट को, फेल्ड लव को, या फिर कोई रिलेशनशिप जो काम नहीं करा है, राइट? तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि एवरी ब्रोकन प्रॉमिस इज नॉट अ क्राइम. अब यहाँ पर बात करेंगे केस की, ये केस कर्नाटका हाईकोर्ट तक गया कैसे. तो यहाँ पर देयर वाज अ वुमन हु अप्रोच्ड एन एडवोकेट basically in 2029, right, for a legal matter, right? So they both met, they became close in 2022, and she claimed that they had a physical relationship in 2023, right, based on a promise of marriage. So she filed a criminal complaint in December 2024. So basically that man denied, right, and making any promises of marriage, so having any physical relationship, he said that the complaint was false and it was basically motivated, right? तो ये कहानी थी जिसके थ्रू ये केस हमारे पास गया था, राइट? अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ऑन व्हाट बेसिस द कोर्ट, राइट, दे कैंसल, दे क्वाश द केस. तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट और पूरे पूरे एविडेंसेस देखने के बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो women already had a complex marital history, right? अब this can be debatable also, right? Most of you will say कि what if she had so many marital status, marital history, so what, right? That was a history. If meant something did to her, so what this has to do anything with the history? This is debatable. This question can arise. And court also observed that she had two children. One child was born in 2020, and also official records showed her that second husband as the father. अब recent photographs, they showed her that still living with the husband.
Because of this, what court said that it is hard to believe the consent was given only because of a promise of marriage, right? So the court strongly observed that the case looked like an attempt to convert a private dispute criminal prosecution में change करने की बात करी है, right? अब ये criminal case जो था वो cancel हो गया. So consent based deception जो होती है वो crime होता है, right? Consent अगर mutual relationship में fail हो जाती है तो वो crime नहीं है, that's something personal to you. वो यही चीज हमारी कोर्ट ने बोली है. तो कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को कहते हुए एक चीज के लिए वार्न भी किया है कि सेक्शन 69 को मिसयूज ना किया जाए. क्रिमिनल लॉ जो है that cannot become a weapon after a relationship is collapsing, right? Otherwise it would lead to basically criminalization also, right? आप पर भी उस चीज के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, right? So ये सारी चीज, ये बैकग्राउंड स्टोरी है हमारे पास में. तो आपके पास में हिस्ट्री समझ में आ चुकी है, you know what the story is. Now we'll understand that how we have to present this in prelims and how we have to present in the mains answer. ठीक है. If something like this is coming in the news, then how you can not have in your mind? तुम्हारे दिमाग में कुछ thought नहीं चल रहा है. I gave such huge, such harsh and some debatable lines to you, comments to you, and you still don't have anything to write. ऐसा कैसे हो सकता है? या तो तुम फिर दिमाग खोल के सोच नहीं रहे हो, या फिर तुम सिर्फ सुन रहे हो because you want to be present here. ठीक है, उसके अलावा तुम कुछ कर नहीं रहे हो. How can you not have anything in your mind? चलो अब पहले पढ़ते हैं इसका relevance क्या है. So here we are talking about GS paper 2 as it connects to polity and governance, right? क्रिमिनल लॉ की बात होती है, इंटरप्रिटेशन न्यू लॉज की बात होती है, हाई कोर्ट का क्या रोल है, ठीक है? अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को मिसयूज कर रहा है, किसी आर्टिकल को मिसयूज करके बेसिकली कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है, तो उस चीज को हाई कोर्ट कैसे मैनेज कर रही है, दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद में जीएस पेपर 4 जस्टिस वर्सेस रिवेंज, एथिकल यूज ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस, दिस वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड. नए क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, बीएनएस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाई एग्जाम रेलेवेंस है, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कैसी होती है नए नए सेक्शंस में, ठीक है? और बेसिकली ये चीज भी दिखाता है कि कैसे प्रिवेंट करता है कोर्ट अगर कोई देयर इज अ मिसयूज ऑफ एनी लॉ, राइट? एंड इट आल्सो क्लैरिफाइज डिफरेंस बिटवीन क्राइम और सिविल. अगर कोई इमोशनल बेसिकली डिस्प्यूट चल रहा है तुम्हारे बीच में और वो बेसिकली इंसान आपके पास कोर्ट में जाके उस चीज को प्रेजेंट करे, तो हाउ कोर्ट इज टेकिंग इट, राइट? एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर केस लॉ बेस्ड, दैट इज आंसर, दैट कैन कम आंसर इन मेंस आल्सो, ठीक है? प्रीलिम्स के लिए तो वी आर रीडिंग आर्टिकल्स और जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी दैट यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है? आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल्स यहाँ पे रेलेवेंट हो सकता है, ठीक है? तो चलो लीगल फैक्ट्स की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 69. अब ये जो सेक्शन 69 है ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्स बाय डिसीटफुल प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, राइट? सो बेसिकली द इंटेंशन टू डिसीव इज एसेंशियल हियर, और यही चीज इस वाले केस में भी हुई थी. सो जुडिशियल का ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो उन्होंने क्या बोला है कि ब्रोकन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिमिनल ऑफेंस मान लोगे, राइट? लॉ पनिशेस फ्रॉड ओनली, कोई इमोशनल फेलियर बेसिकली पनिश नहीं करता है. सो कोर्ट मस्ट प्रिवेंट ऑल द क्रिमिनलाइजेशन, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनलाइजेशन. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का रोल क्या होगा? हाई कोर्ट जो है बेसिकली हमारे लिए गार्जियन है. अगर कोई देयर इज अ क्रिमिनल लॉ जिसके अगेंस्ट बेसिकली मिसयूज हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैटर जो हमारे लिए करता है एविडेंस और कंटेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, और सिर्फ एलिगेशन नहीं, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस आर्टिकल, दैट इज सेक्शन 69. अच्छा, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने उन्होंने क्लैरिफाई करा सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल रिलेशंस दैट इज बेसिकली अपलोड थ्रू डिसीटफुल प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, बिना किसी इंटेंट के या बिना किसी को फुलफिल किए, ठीक है? यही चीज हमें समझ में आई यहाँ से. अब इसके साथ साथ में हम बात करेंगे एग्जैक्टली सेक्शन 69 है क्या. So this 69 makes it a separate criminal offense कि अगर कोई person, if there is a man basically abuses a woman to have sexual relations by giving a false promise of marriage. So basically when the person never actually intended to marry but still they are having this sexual relationship, so this was not clearly defined as separate offense under the old IPC. पहले define नहीं किया गया था. अब सेक्शन 69 जो है हमारे पास स्टैंड अलोन ऑफेंस बोला जाता है. क्यों बोला जाता है स्टैंड अलोन ऑफेंस? व्हाट इज स्टैंड अलोन? इसका वर्ड ही खुद बता रहा है स्टैंड अलोन. तो जब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन ऑफेंस की, इसका मतलब होता है इट इज एन इंडिपेंडेंट क्राइम, ठीक है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रूविंग रेप या फिर इसकी कोई पनिशमेंट सेपरेटली मेंशन हो, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में, राइट, इट डिड नॉट लाइक फिट नीटली इनटू द डेफिनेशन ऑफ रेप. तो बेसिकली कोर्ट अर्लियर हैड टू स्ट्रेच अदर सेक्शंस आल्सो, जैसे कि चीटिंग हो गई या फिर रेप हो गई, राइट? अब यहाँ पे क्रिमिनलाइज एग्जैक्टली है क्या?
तो सेक्शन 69 पनिशेस डिसीटफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप, जहां पे कंसेंट दिया गया है पर कंसेंट वाज ऑब्टेन थ्रू डिसेप्शन। सो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट है वो है इंटेंशन। अगर एक्यूज्ड नेवर इंटेंडेड टू मैरी फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमारे पास ये किस चीज में बदल जाएगा, तो क्राइम में बदल जाएगा, राइट। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर रिलेशनशिप फेल हो जाता है बाद में, तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी गई है ये कि अगर हमारा रिलेशनशिप, राइट, इफ टू एडल्ट्स वर इन अ रिलेशनशिप एंड लेटर मैरिज डिड नॉट हैपन ड्यू टू जेन्युइन रीजंस, तो ये क्राइम अंडर सेक्शन 69 बिल्कुल नहीं आएगा। क्राइम एग्जिस्ट ओनली व्हेन द प्रॉमिस वाज फेक फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट। अब सेक्शन 69 पनिशमेंट क्या क्या देता है, तो 10 साल की प्रिजमेंट हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो ऑफेंस है ये एज अ रेप क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वी कैन ट्रीट इट एज, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं सेक्शन 69 में, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, इस सेक्शन 69 में बहुत बार डिसीटफुल का आपने वर्ड सुना होगा, तो डिसीटफुल का मतलब क्या है, तो सेक्शन 69 जो है इंक्लूड करता है फॉल्स इंड्यूसमेंट, मतलब फेक मैरिज प्रोमिसेस, फेक जॉब या फिर करियर प्रोमिसेस, ठीक है, कंसीलिंग टू आइडेंटिटी ऑल्सो, जैसे कि मैरिटल स्टेटस हो गया, रिलीजियस हो गया, इन सारी चीजों के लिए, राइट। और एनी डेलिबरेट, मैम यस मैम अगर इनमें दोनों का फॉल्ट होगा तो इसमें फिर क्या क्राइम होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी? यही तो बोला बच्चे, अगर लाइक इट इज इन बेसिकली कंसेंट के साथ में चल रहा है तो देयर विल बी नो क्राइम, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड क्राइम, राइट। अगर बेसिकली दोनों का म्यूचुअल है, राइट, जैसे कि इस केस में वो जो मैंने पहले बताया था, तो बेसिकली इट विल बी कंसीडर्ड एज पर्सनल डिस्प्यूट, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो यही चीज है। अब ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, तो कोर्ट ने बहुत सारे केसेस देखे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, जिसमें क्लियर रेमेडी मेंशन ही नहीं हुई है, राइट। तो विक्टिम फेस डिफिकल्टी इन प्रूविंग रेप्स, ठीक है, एंड लॉ मेकर्स वांटेड टू रिकॉग्नाइज डिसेप्शन एज हार्म। तो बेसिकली यहाँ पे लॉ ने बैलेंस करने की कोशिश करी कंसेंट में, राइट, विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड आल्सो, राइट, जैसे कि इस केस में एंड इन द अदर केसेस वेयर बेसिकली एक्चुअली विक्टिम वर देयर, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि सेक्शन 69 क्या है, राइट। सो बेसिकली दिस क्रिमिनलाइजेस सेक्सुअल रिलेशंस दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू डेलिबरेट डिसेप्शन, ठीक है, एंड स्पेशली फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज आल्सो, and this recognizes consent obtained by fraud as legally punishable through basically and not through rape, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ चुकी होगी किस बारे में ये। So I hope you understood that false marriage promises is not a criminal if relationship fails. So this was said to us by Karnataka High Court, right? Promise अगर break होता है, ठीक है, law तभी intervene करेगा अगर if there is like a false marriage promises also, but अगर consent है, right? Like in this case there was consent, right? We have to observe the facts also और फिर उसके बाद में ही decision लिए जाएंगे, right? Now judgment ने क्या clarify किया कि अगर sexual relationship है, false marriage of marriage है, ठीक है, तो आपको जेल कितनी होगी, 10 साल की, फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। Sexual relations have false marriage promises is there, intention to cheat is there, only then we can introduce section 69 there, right? Apart from that अगर consent है, right, और if you basically misuse of section 69 is there, तो वहां पर इसके लिए भी अलग से पेनल्टी और अलग से फाइन है। Now why did Karnataka High Court quash यानी कि cancel the case, तो वहां पे देखने को मिला कि women was staying with the husband, second husband was there and she also had a child in 2022 with her second husband, right? तो और उसके recent photographs में ये भी दिखाया कि कैसे she was still living with her husband, right? तो मतलब she knew she was not like coming to get married to the first man, right? तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 69 पर स्पेसिफाई किए कुछ कुछ चीजें, राइट। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। विद दिस लेट्स मूव टू अनदर थिंग दैट इज क्वेश्चंस। चलो क्विकली यस, इजी क्वेश्चन अभी बताया मैंने, पूरी स्टोरी समझाने से पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया।
आई कैन नॉट सी आंसर्स, ऐसा क्यों? अभी तो समझाया मैंने BNS, पोर्टल में भी आंसर नहीं दिख रहा है, वाई? इतना तो टफ भी नहीं है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज बी। क्यों है बी? बिकॉज एज आई एक्सप्लेन कि भारतीय न्याय संहिता दैट इज BNS, सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, इट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये तभी होगा जब कंसेंट जो होगा ऑब्टेन होगा बाय चीटिंग ओनली, ठीक है? तो अगर मैरिज फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल डिस्प्यूट या फिर बिकॉज ऑफ देयर रीजन, तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी। अंडरस्टूड? यस विकास, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेरी गुड दिव्यम, बी। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, and all these questions are prelims questions, ठीक है? So make sure that you are understanding these words properly. Again very important, BNS का भी समझाया मैंने। Yes, what is the correct option here? Which one of the following best describes section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita? It treats false promises of marriage as rape. A तो बिल्कुल नहीं है, right? Then it criminalizes consensual relationships retrospectively. It creates a separate offense for sexual relations obtained by deceit. So fourth, it removes the requirement of consent in sexual offense. So the correct option that we have is C. क्यों है C? As I explained, section 69 of the Bharatiya Nyaya Sanhita does not automatically treat a false promise of marriage rape, बल्कि ये क्रिएट करता है एक सेपरेट क्रिमिनल ऑफेंस जब कोई सेक्सुअल रिलेशन जो है ऑब्टेन होता है किसी डिसीट से, जैसे कि कोई डेलिबरेट फॉल्स प्रॉमिस हो गया मैरिज का, ठीक है, एंड दैट मैरिज बेसिकली वाज प्रपोज्ड विद नो इंटेंशन टू मैरी, राइट, और बेसिकली देयर वाज नो ऑब्टेन्ड कंसेंट आल्सो। वेरी गुड विकास। कौन सी सब्जेक्ट टीचर की वीडियोस प्रोवाइड करवा सकते हो? आई डिडंट अंडरस्टैंड नेहा, व्हाट डिड यू से? चलो नेक्स्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट वन, prelims के लिए it's important. Now lowering the age of juvenility for crimes is a step back. Okay, now imagine करो there is a young teenager and I want each one of your viewpoints on this, क्योंकि this is a very debatable, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे thinkers ने, बहुत सारे लोगों ने, especially psychologists have like mentioned about this, they have given different explanation to it. तो तुम्हारा भी viewpoint इस चीज के लिए होना चाहिए, ठीक है? अच्छा बात करते हैं, there is a young teenager, ठीक है, उसकी उम्र है 15 साल, जिसने बहुत सीरियस मिस्टेक की है। तो अब मुझे तुम ये बताओ, would you see them as the same way like you are seeing 24-year adult or not, ठीक है? तो में से काफी लोग बोलोगे कि नहीं, 15 साल और 25 साल में तो बहुत फर्क होता है, ठीक है, मेंटालिटी का भी और उसके बाद अपब्रिंगिंग का भी, ग्रोइंग का भी, वी हैव टू लुक एट डिफरेंट एस्पेक्ट आल्सो, राइट? क्योंकि टीनेजर्स आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक है, अभी भी वो बेसिकली लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एंड दे आर नॉट येट फुली मैच्योर इन देयर थिंकिंग, और खुद के बिहेवियर में अभी भी वो ढले भी नहीं है, राइट? तो हमारे लीगल सिस्टम में वी रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंशिएशन by treating people below 18 years of age as juvenile, ठीक है? तो जब भी कोई क्राइम होता है तो अंडर दिस कंडीशन वी सी देम। इसका मतलब ये है कि दे आर बेसिकली ट्राइड इन जुवेनाइल कोर्ट्स, ठीक है? फोकस जो होता है रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्म्स पे होता है, किसी पनिशमेंट पर नहीं होता है, राइट? एंड दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग सेंट टू द अडल्ट प्रिजनर्स। तो ये जो आइडिया है ये है बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस का, मतलब केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। अब इसका एम क्या है कि चिल्ड्रंस को बेसिकली वी हैव टू हेल्प टू व्हाटएवर रॉन्ग दे हैव डिड सो दैट दे कैन बिकम बेटर सिटीजंस, ठीक है? उनके फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है और उनको हार्श पनिशमेंट देने से अच्छा है हम उनके बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए फोकस करें, राइट? आप इमेजिन करो दैट समवन प्रपोजेस दैट आर वेरी सीरियस क्राइम, ठीक है, जैसे कि मर्डर हो गया या फिर रेप हो गया, देयर आर सो मेनी केसेस, निर्भया केस में भी देयर वाज अ जुवेनाइल केस, है ना? तो यहाँ पर जो एज लिमिट है दैट शुड बी लोअर्ड फ्रॉम 18 टू 14। इसका मतलब ये है कि 14 साल का जो भी लड़का या फिर लड़की होगी दैट कुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट क्रिमिनल, राइट? दे विल बी बेसिकली पुट इनटू अडल्ट कोर्ट्स एंड दे विल फेस व्हाट, दे विल फेस अडल्ट पनिशमेंट, राइट? अब ये जो बेसिकली न्यूज है इसमें इट्स स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी, डिबेटेबल है, एज आई सेड इन द स्टार्टिंग आल्सो, राइट?
and make sure that you also have viewpoint regarding this. तो यहाँ पर इस न्यूज में आर्ग्यू किया गया है that lowering the age is nothing but it is a step back. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे basically we are talking about future, right? That person did something wrong, but basically that child, that kid should be given a chance, right? As it is mentioned, then there might be some history also, there might be some situation also. Now most of you will say कि ये तुम justify कर रहे हैं situation को. Yes, it could be like said like that also, as I said in the before only, कि तुम्हारा viewpoint बहुत matter करता है ऐसी news पर, right? And it's very important not only in governance or politics, but ऐसे और ethics में भी बहुत ज़्यादा important है ये चीजें. अच्छा, अब मेरे पास अभी तक भी चैट बॉक्स में तुम्हारे व्यू पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई. अब बात करते हैं कि ये जो एज कम करने की बात है, ये बैड आइडिया क्यों है, ठीक है? सो चिल्ड्रन आर डेवलपिंग, ठीक है? जो टीनेजर का ब्रेन होता है, स्पेशली दैट पार्ट बेसिकली जो कंट्रोल करता है जजमेंट को, यू नो इम्पल्स कंट्रोल दैट वी से, वो अभी भी फॉर्म हो रहा होता है, राइट? एक 14 साल का बच्चा वो बिल्कुल अलग सोचता है एक अडल्ट से, राइट? एंड दैट बेसिकली चाइल्ड में नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, राइट? प्रॉपरली वो नहीं समझ पा रहे हैं जब उन्होंने वो मिस्टेक की होगी. तो ट्रीटिंग देम लाइक अडल्ट इग्नोर्स देयर पोटेंशियल टू रिफॉर्म्स आल्सो. जो सुधार उनके लिए फ्यूचर में आ सकता था, अगर हम एज एन अडल्ट ट्रीट करेंगे, तो जो फ्यूचर में रिफॉर्म्स आ सकते थे, कहीं ना कहीं हम उन्हें बैलेंस करके नहीं चल रहा है. दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस न्यूज, ठीक है? अब the whole system is about rehabilitation. So the juvenile system focuses on counseling, education पर फोकस करता है, behavior change पर फोकस करता है, right? Reintegration पर फोकस करता है सोसाइटी में. और अगर young teens are treated as adult, so the law stops being supportive, ठीक है? मतलब corrective measures के लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने, right? And it becomes punitive also और बहुत ज्यादा damaging भी. अब ये हार्म क्या करेगा? हार्म करेगा मेंटल हेल्थ को. उनका भी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं दैट विल बी रूइंड, है ना? और वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर दैट किड ओनली बट फॉर द सोसाइटी एज वेल, राइट? So there is basically little evidence that basically it helps reduce crimes also. So supports of lowering age argues that harsher the punishment, then it will deter teen crimes also. But evidence ने यहाँ पर क्या दिखाया है कि जितना ज्यादा serious crime होता है by young people or committees by older teens closer to 18, crime basically by those age so 14 or 16 are relatively very few. तो अगर आप basically you are like lowering the age, it will like punish many children unfairly without actually making society safer. ठीक है? तो यहाँ पर रिस्क हमारे पास है सोशल प्रोटेक्शन का फॉर चिल्ड्रन. अब अगर हम लोअर कर देंगे एज को, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? हमारे पास लीगल सेफगार्ड्स में प्रॉब्लम होगी, राइट? एफिशिएंसी इन द सोसाइटी विल बी समवेयर मिसमैनेज्ड, ठीक है? स्पेशल चाइल्ड यहाँ पे फोकस करते हैं कोर्ट्स के, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की यहाँ पर बात होती है. तो इंस्टेड दे एंटर अडल्ट प्रिजन्स. सो व्हेन बेसिकली दे आर एक्सपोज्ड टू यू नो हार्डन्ड क्रिमिनल्स, और ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा. और जहां पर आपको वायलेंस देखने को मिल रहा है, तो वहां पर बेसिकली आप कुछ सीखने को तो ले जाओगे नहीं, राइट? So it can like do lasting harm than the precautions and the measures that we are like basically we are trying to take, right? अब यहाँ पे recommend क्या किया गया है? यहाँ पे recommend किया गया है कि आपको strength करने पड़ेंगे अपना rehabilitation system, improve करना पड़ेगा mental health system, ठीक है? जिसमें हमारे पास improve होगी हमारी family, हमारी community, right? और यहाँ पे correction की बात करो, address करो आप basically कि root cause क्या है, ये problem आई ही क्यों? रूट कॉज क्या है हमारे पास? पावर्टी है, ठीक है? बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन इज देयर, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एक सर्टेन बेसिकली पार्ट ऑफ कम्युनिटी को, ठीक है? और यहाँ पे यू हैव टू सपोर्ट यंग पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम क्राइम आल्सो. यू डोंट हैव टू पनिश देम हार्शली, ठीक है? तो मतलब इट्स बेटर टू हेल्प अ चाइल्ड बिकम अ रिस्पांसिबल एडल्ट देन टू पनिश देम और बेसिकली पुश देम टुवर्ड अ वर्स्ट फ्यूचर. सो दिस इज बेसिकली व्हाट दिस न्यूज इज टेलिंग टू अस, ठीक है? आई होप समझ में आ चुकी होगी कि न्यूज किस बारे में है. सो एक बार रेलेवेंस देख लेते हैं टॉपिक का. सो बेसिकली दिस न्यूज इज टेलिंग अस अबाउट जीएस पेपर 2 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की यहाँ पर बात हुई है, चाइल्ड राइट और लीगल सेफगार्ड की बात हुई है, जीएस पेपर 4 में एथिक्स, ह्यूमन डिग्निटी, कंपैशन वर्सेस पनिशमेंट, जस्टिस फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, राइट? और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के साथ साथ में बैलेंस भी हो रहा है पनिशमेंट और रिहैबिलिटेशन के बीच में भी, राइट? और कैसे बेसिकली केयर प्रोटेक्शन और चिल्ड्रन केयर एक्ट में क्या क्या नए नए मेजर्स होते हैं, और वो बेसिकली कैसे डिबेटेबल होते हैं इन द सोसाइटी, and how those can be managed. First we have to analyze the root cause also, then we have to analyze that whatever measures we are taking long term पे उस इंसान पर क्या impact करेंगे और society पर कैसे impact करेंगे, that we have to understand, ठीक है? I hope the news is clear to you. Actually some children are, I'm sorry, I cannot use the 18 below, but psychologically they can think above their age, so psychologically think above age.
Okay, this might be debatable as whatever you have written, most of the thinker and many psychologists have the same thing only. ठीक है, पर हर बार ऐसा सिनेरियो नहीं होता है, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं, तो मतलब या तो हम बैलेंस करके चले, ठीक है, रूट कोज देंगे, एज इस न्यूज में मेंशन किया गया है कि आप रूट कोज को देखो कि वो क्राइम का बेसिकली कंटेक्स्ट क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट क्राइम, ठीक है, उसका बैकग्राउंड देखो, एज हमें बोला गया है, और स्पेशली यूपीएससी में तो इट्स वेरी नेसेसरी, व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द हिस्ट्री। तो इस केस में भी यही देखना चाहिए कि हर क्राइम के पहले हिस्ट्री देखो, बैकग्राउंड देखो, व्हाट बेसिकली दैट चाइल्ड वाज गोइंग थ्रू, व्हाट द हिस्ट्री इज, राइट। हम किसी को भी पढ़ने से पहले सबसे पहले हिस्ट्री तो देखते हैं, और हमेशा देखते हैं कि जो उनकी रेलेवेंस, जो उनकी आइडियोलॉजी का जो बेसिकली रेलेवेंस है, वो कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड से या फिर उनकी हिस्ट्री से हमेशा कनेक्ट करता है, और यही चीज हमें व्हाइल मेकिंग दीज एक्ट आल्सो वी शुड कंसीडर, राइट। एज आई सेड, दिस इज समथिंग वेरी डिबेटेबल। आपको क्या करना है, जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है, मेक श्योर दैट यू हैव पर्सपेक्टिव, यू आल्सो हैव सम व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस, राइट, ताकि और थोड़ी नई नई चीजें हो, ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विद दिस विल एंड टुडेज क्लास, and I will see you tomorrow at same timing 8:10 a.m. And about the PDF, these PDFs will be there in the comment section. And this is the question that you have to write the answer in the comment section. ठीक है, इसके साथ में आज की क्लास, आज की सभा खत्म करते हैं, और हम मिलेंगे आपसे कल सुबह 8:10 पर। सॉरी।